आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। इसी को लेकर द पॉलिसी टाइम्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आई कैट कन्वेंशनल सेंटर मानेसर गुरुग्राम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय था कि भारत के अगले विकास इंजन बनने के लिए क्या ईवी सेक्टर विकास में हितधारक है। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के साथ ईवी क्षेत्र को टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए थीम्ड श्री सौरभ दलेला माननीय निदेशक ICAT द्वारा एक थीम भाषण के साथ संगोष्ठी शुरू हुई। इस बीच श्री सातोशी सासाकी प्रभारी अधिकारी दक्षिण एशिया के लिए ILO डिसेंट वर्क टीम और भारत के लिए कंट्री ऑफिस श्री अरिंदम लाहिड़ी CEO ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल इंडिया, श्री N मोहन CEO दिल्ली EV सेल परिवहन विभाग और सुश्री ऐश्वर्या रमन कार्यकारी निदेशक OMI फाउंडेशन ने EV और इसके समग्र विकास पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। नॉर्मली लाइक रेट्रोफिट करके कॉन्सेप्ट है, लाइक टिपिकली जो नॉर्मली पेट्रोल या डीजल सेगमेंट व्हीकल होता है उसको लाइक थ्रू रेट्रोफिट दे कैन कन्वर्ट सच व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसमें अभी टिपिकली लाइक हम दिल्ली का मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, दिल्ली में अभी एक कंपनी रजिस्टर्ड है विच आर प्रोवाइडिंग द रेट्रोफिट किट्स फॉर 2 व्हीलर्स, जो 6 स्प्लेंडर व्हीकल का मॉडल है, फॉर विच दे आर प्रोवाइडिंग द रेट्रोफिट किट विच आर कन्वर्टिंग दिस पेट्रोल व्हीकल टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। And we have defined the process also, like how what's the process for empaneling such companies. It makes sense because when we talk about the tailpipe emissions, right? Converting the existing IC vehicles to electric makes more sense, but presently the cost is one of the big challenge because retrofitting cost is a little expensive. Considering the less demand in the market, it's a little expensive. But we need to see like how the market will mature, how the technology will mature. Depending upon the viability, I think this will take shape in coming years. Thank you very much and thank you for calling me here. So the topic is, can the EV sector be India's next growth engine? In fact, let's look at what is happening around the world. It's not only this can for India, this can is actually for the entire world. Even the countries like US is looking at it. The IRA is, I mean, there is nothing can actually prove but the IRA which has come out, and it's, in fact, it is one of the most exhaustive program which focuses mainly on the controlling the supply chain in the EV sector. Let's decouple the EV in 2 important parts. One is the battery, that is the storage part, and second is the vehicle. The storage part is actually the entire energy part, which covers again one of the important aspect of today, which is the health part. That is today is World Day for Safety and Health. The organization, then ILO, to brief us about the global workplace safety and workplace health issues concerned. You have you have highlighted one very important point, which I would just want to repeat for our industry partners and others, is that better safety and better healthy workplace environment actually helps bring better investment, better keeping our employees or staff deprived of many of the basic facilities and needs does not create a healthy environment, work environment. Because we all need to understand, even God says that human being is the most precious element sent on earth. So respect for human and giving human the highest position in real life actually brings the real contribution. Now, the other important aspect which our honorable Director ICAT sir said is that this is the era of engineers. Actually, since the modernization of the universe, since the human being started advancing, engineering has always been the backbone. Last couple of decades maybe the era of our software engineers, but EV brings immense opportunity for electrical engineers, mechanical engineers, and many other, I think, category of engineers. हर एक 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये इसमें डेफिनेटली सबको चिंता वाली विषय है और सबको हमें काम करना है।
क्या वजह हो सकती है बड़ा मुश्किल है। देखिए आप ये समझें इस चीज को कि एक बार गाड़ी में आग लग जाती है तो उसको एनालाइज करना कि कहां से आग शुरू हुई होगी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंजीनियर्स ने इस पे काम किया है, बहुत सारे सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जिसपे ये काम हुआ है और इसके आधार पर नए नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपने मुझे सुना हो तो मैंने यही कहा था कि जब एक डीजल या पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए उसकी कूलिंग में प्रॉब्लम आई, जो मैंने उदाहरण दिया था वो यही था कि मान लीजिए वो गर्म हो जाता है, वो गर्म हो जाता है और जैसा सर ने बताया कि वो पानी डालने जाता है और पानी नहीं डाल पाता है क्योंकि उसमें कुछ है नहीं इस तरह का। लेकिन एक माइंडसेट है कि अगर गर्म हो भी जाएगा तो कम से कम आग नहीं लगेगी। आईसी इंजन का ये माइंडसेट है। कुछ भी ऐसा हो जाता है तो इतना नहीं होगा जितना हम ईवी में सोच रहे हैं या देख रहे हैं। तो ईवी में जो अनसेफ सिचुएशंस हैं वो थोड़ी कंपैरेटिव टू आईसी, थोड़ी ईवी की बात हो चुकी है। अब हम थर्मल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक विषय ऐसा है जिसमें सबको चर्चा करनी आवश्यक है। लेकिन हाँ, एक जागरूकता ये जरूर क्रिएट की जा सकती है कि अगर आप देखें तो क्या करना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से आज भी है, चाहे ईवी हो या ना हो। ये एक ऐसा विषय है जिसपे हमें जागरूकता लानी आवश्यक है। जब कोई भी चीज नई शुरू होती है तो उसमें चैलेंजेस होते हैं, ये हम सब समझते हैं। देखिए 2001 में मेरे ख्याल से, अगर मैंने वर्ष सही बोला है तो 2001 में एक सीएनजी का ट्रांसफॉर्मेशन आया था, भारत में आया था और दिल्ली में तो आया ही था एनसीआर में, जब ये कहा गया कि सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ सीएनजी पर रहेगा। तो इनिशियली बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी और लोगों को थोड़ा सा समय लगता है ट्यून होने में एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे। तो कोई भी जब नई चीज आती है तो थोड़ा सा समय हम सब लोग लेते हैं, सब लोग। हम आज बात कर रहे हैं तो ये भी एक नई चीज हो रही है क्योंकि हम ईवी की बात करने लगे, एक नई चीज है, तो इस वजह से कुछ प्रश्न और बन रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और इसी चीज को मैं भी बोल रहा हूं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है थोड़े से ऊपर नीचे ऊंच नीच रहता है और उसके बाद हम सब लोग इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, रेगुलेट हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। हम भी एज ए यूजर भी जागरूक हो जाते हैं, एज ए रेगुलेटर भी जागरूक हो जाते हैं, सरकार को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो एक जर्नी होती है जो कि सभी लोग इसके थ्रू निकलते हैं। सोलर एनर्जी एंड विच कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल रिचार्जिंग, बट इसमें हो सकता है कि लाइक टिपिकली इफ यू सी द जनरेशन टाइम ऑफ द सोलर एनर्जी, इट्स ऑन द डे टाइम and there could be need for to do the storage of those energy by means of like battery energy storage system. But like largely like what we have seen in Delhi is like we have some of the EV charging station where we have put up the solar panels which are generating solar energy and it is being used for charging the electric vehicles. It makes more sense because when talking about decarbonizing the transportation sector, sourcing the clean energy makes more sense for at least like fueling the electric vehicles. मैं सौरभ दलेला हूँ, डायरेक्टर आईटी। हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं और ये इस बात पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो भविष्य है उसमें ईवी का जो योगदान है हमारी ग्रोथ में वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एक ऐसा मौका है जिसे हम में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है, इतनी एम्प्लॉयमेंट आने वाली है, इतने नए नए स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं और इतने नई नई इनिशिएटिव्स आने वाले हैं कि मैं यही कह रहा था कि जितने इंजीनियर लोग हैं उनके लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंडिया रहेगा और ये बहुत चीजें हम लोग सीखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजों में योगदान रहेगा हम लोगों का। तो अगले 10 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं ये हम लोगों का। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी जब शुरू होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप याद करें सन 2001 में या 2000 में जब सीएनजी दिल्ली में आया था तो हमें बहुत सारी अड़चनें दिखाई दी थी। हमें लगा सीएनजी स्टेशंस कम है, हमें लगा कि सीएनजी सेफ नहीं है और कुछ दुर्घटनाएं भी उन दिनों हुई जिसमें सिलेंडर फट गया या लीकेज हो गई या आग लग गई। लेकिन आज के तारीख जब 20 साल हो गए हम लोग इस विषय में बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ मैच्योर हो गया है। तो जब कोई टेक्नोलॉजी शुरू होती है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं और यही एक यात्रा का अंश होता है जिसमें हम शुरू में कुछ चैलेंज आते हैं उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, सारे लोग साथ मिलके जुट के काम। देखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जो घोषणाएं की हैं COP 26 में, अब किसी भी भारतीय को इसमें पीछे नहीं जाना है। कोई भी भारतीय हो, चाहे वो उद्योग जगत का हो, चाहे एकेडमिया का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे रेगुलेटरी हो, चाहे सरकार हो, इन लोगों को अब इसमें सोचना नहीं है कुछ, क्योंकि ये तो पत्थर की लकीर है, ये हासिल करनी ही करनी है। पहला पड़ाव 2030 का है, हमें इसे हासिल करना है। हमें अब रास्ते खोजने हैं कि कैसे हासिल करना है, लेकिन करना है, पहुंचना है इस मंजिल पे।
है, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई भी ना रखे। एनी मैसेज सर, कोई मैसेज देना मैसेज चाहेंगे? बस यही है कि इसमें थोड़ा सा हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि कंपेयर टू आईसी इंजन, इलेक्ट्रिक में थोड़े से रेगुलेशंस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन जब फेल होता है या इलेक्ट्रिक मोटर जब फेल होती है या इलेक्ट्रिक सिस्टम जब फेल होता है तो उसमें ज्यादा करके थर्मल केसेस बन सकते हैं, आग के केसेस बन सकते हैं। और आग का केस एक बार बन जाता है तो एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होता है कि आग कहां से लगी, क्या हुआ, कौन सी चीज शॉर्ट सर्किट हुई थी, क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लगी, क्या बैटरी में आग लगी, क्या मोटर में आग लगी, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि सब जल चुका है। बनस्पत इसके जब फॉसिल फ्यूल इंजन था तो उसमें हर चीज में आग नहीं लगती थी, उसमें हर चीज में क्या होता था कि बहुत से बहुत हुआ तो इंजन सीज हो गया, इंजन फेल हो गया। तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हम नए नए ईवी सेक्टर में घुस रहे हैं और जबरदस्ती के रेगुलेशंस आ रहे हैं। ये जबरदस्ती के नहीं है, ये समाज के सेफ्टी के लिए है। और जैसे जैसे हम लोग इस यात्रा में चीजों को सीखेंगे, ऐसा हो सकता है कि इसमें रेगुलेशन और रेगुलेटरी अफेयर्स थोड़े से ज्यादा होंगे। तो कोई ये ना समझे कि ये कुछ ज्यादा किया जा रहा है या फिर नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको डिस्करेज करने का कोई मुहिम शुरू हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को इन सब चीजों को बहुत तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज जब कुछ लोगों से बात कर रहा था तो इस तरह का कुछ लोगों के मन में ये था कि ये रेगुलेशंस कुछ जरूरत से ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अभी एक बैटरी का 156 AIS 156 रेगुलेशन आया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक्सपीरियंस के बाद आया है। हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं इसमें और सीखने के बाद हमने उसको इंप्लीमेंट किया है। सो ये एक जर्नी डिफरेंट रहेगी। ये ना सोचें कि जैसे ऑटोमोटिव पहले था फॉसिल फ्यूल वैसे ही ये रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम उदय नारंग है। आज मैं इधर आईकैड में ईवी के एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में आया, जहां पे आज इस कंट्री में जो हमारी ईवी की लहर चल रही है वो अनस्टॉपेबल है। और इस शहर दिल्ली शहर में जो कहते हैं जो कभी स्लीप नहीं करती, यहाँ पे और कितने व्हीकल लगेंगे, बहुत सारे। और इस कंट्री में दिल्ली की लीडरशिप ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत आगे है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स, पैरेलल इकोसिस्टम बिल्डिंग पूरे स्टेट में हो रही है और पूरे नेशन में। आप इस साल में आपने देखा होगा, इसमें इंडिया में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट इन द वर्ल्ड। आप ये देखेंगे 1 मिलियन ईवीज ऑलरेडी लग चुके हैं और मैं देखूंगा कि नेक्स्ट 5 सालों में इस पूरी सिटी और इस पूरे देश में इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की ही जीत हो। थैंक यू वेरी मच। रखते हुए हमने पॉलिसी टाइम्स बनाया, फिर पॉलिसी टाइम्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कुछ इंडस्ट्री लीडर मिलके हमने बनाया और फिर मुझे चुना गया कि इस तरह से आप इसको देखिए किस तरह से हम और ज्यादा से ज्यादा बेहतर पॉलिसी बनाने में इस देश को मदद कर सकते हैं सरकार के साथ। क्योंकि सरकार किसी के नहीं होते, सरकार देश का किस तरह से अच्छे सुझाव देके सरकार से ज्यादा आम पब्लिक के भलाई के लिए काम निकलवा सकते हैं। तो ये मकसद और मिशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं।